Hello student, welcome back to the next lecture in the series of chapter life processes. So today we will learn about the topic respiration. So what is respiration? The process of releasing energy from food is called respiration. यानी जो खाना हम अब खा चुके हैं उस खाने से हमारी बॉडी क्या ऑब्टेन करेगी, क्या रिलीज करेगी एनर्जी, और उस एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया हुआ है, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, टेकिंग इन ऑक्सीजन ऑफ एयर, हम ब्रीद इन करते हैं तो उसमें हम ऑक्सीजन रिच एयर को ब्रीद इन करते हैं। उस ऑक्सीजन को हमें कहाँ पहुंचाना होगा, अपने बॉडी के सेल्स तक। ईच सेल ऑफ आवर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग फूड, यानी जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के सेल के पास गई है उस ऑक्सीजन से हमारी बॉडी क्या करेगी, फूड को बर्न करेगी और एनर्जी रिलीज करेगी, और फिर जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट बच जाएगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बॉडी से रिमूव कर देगी। So respiration is the reverse of photosynthesis. What does this mean? See, in photosynthesis what happens is that plant obtains carbon dioxide and water from outside, and in the presence of sunlight and chlorophyll converts it into glucose, which is basically the food, and oxygen is released out. This is the process of photosynthesis. And now see, what is happening in the respiration is that we have our body during the digestion have broken down the complex food material into the simplest form, and the simplest form is glucose. So now our body cells contains glucose. Now oxygen is transported to each body cell through our blood. We will learn in the upcoming topics. So glucose यानी कि फूड पे ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन करके क्या बना दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस एनर्जी. So see, in the photosynthesis, carbon dioxide, water and energy from sunlight is being taken to produce glucose and oxygen. And in the respiration, the process has been reversed. See, it is glucose and oxygen which combines to give carbon dioxide and water. These are the byproducts, and the main product is energy. So the energy which has been taken from the sunlight now has been converted into the energy inside the body of animals. So this whole process has been named as respiration. Okay, now the process of respiration takes place inside the cell of the body, right? कि जब हमने खाने को डाइजेस्ट कर लिया तो ब्लड के थ्रू जो हमारे पास सिंपलेस्ट जो फूड मटेरियल जो आए हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म उनकी, वो कहाँ पहुंच गई है, बॉडी के ईच सेल के पास. अब सेल के अंदर जो प्रोसेस होगा उसी को हमने क्या बोला, रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन का हम दूसरा नाम क्या दे देते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, बिकॉज इट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड ऑफ द सेल. नाउ हाउ इज एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन स्टोर्ड, यानी कि जब रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज हो गई, हमने अभी देखा कि रेस्पिरेशन में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है. नाउ दिस रिलीज्ड एनर्जी हैज टू बी स्टोर्ड समवेयर. So see, the energy produced during respiration is stored in form of ATP. Okay, ATP molecule in the cells of the body. ATP molecule कहाँ मिलते हैं, बॉडी के सेल के अंदर. ATP की full form is very important. You should know, adenosine triphosphate. Now how is this ATP produced? So हमारी बॉडी सेल के अंदर एक मोलिक्यूल होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, लेकिन इसके अंदर क्या होता है ना, एनर्जी इज वेरी लो. ओके, सी द डाई मीन्स 2 and tri means 3, which means in low energy content the phosphate which is present is in 2, and when the ADP molecule combines with phosphate and the energy, this is the released energy from photosynthesis, released during respiration. So this energy and ADP plus phosphate, these two molecules store this energy in them and combine to form the ATP molecule. Now the energy is stored. Now whenever the cell will need energy, it will again break down the ATP into ADP and the energy will be released. Then this energy can be used. So this is the whole process of storing, and then when needed we can use this energy. ATP का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, एनर्जी का यूज हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ हो सकता है, इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन, है ना. वेन एवर वी मूव अवर मसल, तो हमारी मसल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, और उस कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी चाहिए. वो एनर्जी हमें कौन देगा, एटीपी ना. प्रोटीन सिंथेसिस में भी एनर्जी चाहिए, वो भी कौन देगा हमें, एटीपी.
नाउ इम्पल्स ट्रांसमिशन, हमारे ब्रेन से सिग्नल लेके आना है या हमारे बॉडी पार्ट से ब्रेन के पास सिग्नल लेके जाना है, उसमें भी एनर्जी का यूज होता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन के भी तो टाइप होता है। सो फर्स्ट इज एरोबिक। नाम से ही पता चल रहा है, एरोबिक मीन्स जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, यानी ऑक्सीजन इज नीडेड, ऑक्सीजन इज यूज्ड इन एरोबिक। एनएरोबिक का मतलब क्या है कि उसके अंदर ऑक्सीजन का यूज हम नहीं करते। ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन का यूज नहीं करते टू बर्न देयर फूड, वो कौन से होते हैं? एनएरोबिक। तो दीज ऑर्गेनिजम्स यूजेस ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज को। किस में ब्रेक डाउन कर देते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, और एनारोबिक में देखो कि ये जैसे यीस्ट, यीस्ट क्या करता है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है ना, वो क्या आता है? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट तो कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में सेम है, वेदर इट इज एरोबिक और अनएरोबिक। बट जो ये वाला प्रोडक्ट है, ये एनारोबिक में क्या होता है? इथेनॉल, जो कि एक टाइप ऑफ अल्कोहल है। ओके, अब जो एरोबिक है, इसके अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है ना, वो इज अ लॉट ग्रेटर, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो बहुत ज्यादा हो रही है एनारोबिक के मुकाबले। ठीक है, यानी कि एरोबिक के अंदर हमारे पास 38 एटीपी मोलिक्यूल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, जबकि एनारोबिक में सिर्फ 2 एटीपी मोलिक्यूल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब एरोबिक रेस्पिरेशन की साइड क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सो पावर हाउस वो क्यों है? क्योंकि जो एनर्जी सिंथेसाइज हो रही है वो कहाँ हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लेकिन जो एनारोबिक है, ये कहाँ पे प्ले, या ये सिर्फ कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में। ठीक है, ये जो सेल है इसके पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और स्मॉल ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। तो जो एनारोबिक है वो कहाँ हो जाएगी? ये साइटोप्लाज्म में। लेकिन जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ पे होती है? इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम देखेंगे कि स्टेप्स क्या क्या है रेस्पिरेशन में। तो सबसे पहले क्या होता है? ग्लूकोज को सबसे पहले ब्रेक डाउन किया जाता है। देखो, जो ग्लूकोज है ना, इट इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। व्हाट डज दैट मीन? कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होते हैं, से 6H12O6। दिस इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, कार्बन में कितने मॉलिक्यूल हैं? कितने कार्बन के एटम होते हैं इसमें? 6। ठीक है, बट ये जो ग्लूकोज है, ये फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन में, ये कौन सा है? स्टेप फर्स्ट। फर्स्ट स्टेप में ब्रेक हो जाता है किसमें? 3 कार्बन मोलिक्यूल में, और उस 3 कार्बन मोलिक्यूल का नाम क्या है? पायरुवेट। अब आप खुद बताओ, कार्बन 6, ग्लूकोज में 6 कार्बन है, पायरुवेट में कितने कार्बन है? 3 कार्बन। यानी 1 ग्लूकोज मोलिक्यूल हमें कितने पायरुवेट देगा? 2 पायरुवेट के मोलिक्यूल देगा। क्लियर? नाउ ये है फर्स्ट स्टेप, और ये वाला जो स्टेप फर्स्ट है ये कॉमन है, बोथ कॉमन इन बोथ। एरोबिक में भी होगा एंड एनएरोबिक में भी होगा, और ये प्रोसेस कहां पे हो रही है? हमारे पास साइटोप्लाज्म में। ठीक है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक हो, साइटोप्लाज्म के अंदर सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म में एक प्रोसेस होती है। उस फर्स्ट स्टेप का नाम क्या है? ग्लूकोज को ब्रेक कर दिया जाता है 3 कार्बन मोलिक्यूल में, और उसका नाम क्या है? पायरुवेट। अब पायरुवेट बन गया, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे फेट ऑफ पायरुवेट। फेट ऑफ पायरुवेट, फेट का मतलब क्या है? कि पायरुवेट तो बन गया है, अब इस पायरुवेट के साथ आगे क्या होगा वो देखते हैं। अगर रेस्पिरेशन एनारोबिक है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये प्रोसेस कहाँ हो रही है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अगर रेस्पिरेशन एरोबिक है, यानी कि हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो पायरुवेट मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। ठीक है, तो यहाँ पे in the absence of oxygen we have ethanol, but in the presence of oxygen we have carbon dioxide and water। और ये कहाँ हो रहा है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो जो स्लो रिलीज ऑफ एनर्जी है वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लेकिन आप जैसे ह्यूमंस की बात करें तो हम क्या है? हमें तो ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के बिना तो हम नहीं सर्वाइव कर सकते। तो वो ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी के पास है, बट सम केसेस में क्या होता है, जैसे किसी ने बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, बहुत रनिंग कर ली है ना, एक्सटेंसिव एक्सरसाइज कर ली, तो जो ऑक्सीजन है वो हमारे जो मसल सेल्स है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी यूज कर लेते हैं। तो क्या हुआ?
ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, एनारोबिक कंडीशन हो जाती है, यानी देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ह्यूमंस के अंदर एनारोबिक कंडीशन कहाँ पे हो सकती है, मसल सेल में। तो जो पायरुवेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो गया, लैक्टिक एसिड में। ये भी क्या है, एक 3 कार्बन कंपाउंड है, यानी इसमें भी 3 कार्बन है। और लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन से, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन से क्या हो जाता है, क्रैम्प्स, है ना। जब हम बहुत तेज भागते हैं, कभी कभी क्या होता है, हमारे पेट में अचानक से दर्द हो जाता है, लेग में पेन हो जाता है, तो वो क्या होते हैं, सडन क्रैम्प्स होते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं, लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से। ओके, सो नाउ वी विल रीड अबाउट देम। फर्स्ट इज ग्लूकोज। ये क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड है, C6H12O6। यू शुड नो दिस मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। इट इज द सिंपल फूड जिसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे, यानी इसमें क्या करेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करेंगे, O2 during respiration. Next is glycolysis. Now this process is very important. जब हम पढ़ चुके हैं कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन, यानी ग्लूकोज में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो हमारे पास क्या बना, पायरुविक एसिड। इसी को क्या बोला है हमने, पायरुवेट। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड बना या पायरुवेट बना, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, ग्लाइकोलिसिस। और ये कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, ईच सेल के। इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी चाहे एरोबिक हो या फिर एनारोबिक हो, बोथ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस तो होता ही है, एंड इट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कितने मॉलिक्यूल बनाता है पायरुवेट के, 2 मॉलिक्यूल्स। ये हमें याद रखना है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पायरुविक एसिड, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास कीटोन है, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इफ यू डोंट नो व्हाट इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस, वी विल रीड अबाउट इट इन द लेटर चैप्टर्स। सो लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड कब बना था, याद करो, भी अभी बताया है, मसल सेल में। कहा बना है ये, मसल सेल के अंदर बना है, व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, जिसके अंदर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ पे हमारे पास एल्कोहल वाला ग्रुप आ गया, ठीक है। Now we can read from the NCERT. Firstly, it is given activity 5.4. What does this activity say? कि कुछ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर ले लो, ठीक है। हमने लाइम वाटर ले लिया, उसके अंदर हम क्या करेंगे, ब्लो करेंगे। ये एक ह्यूमन हमें दिखाई दे रहा है ना। ये ह्यूमन क्या कर रहा है, यहाँ पे एयर ब्लो कर रहा है, राइट। नॉट हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। अब हमारे जो लाइम वाटर को मिल्की होना है वो कितनी देर में हो रहा है, यानी जो इस वाले पार्ट में लाइम वाटर मिल्की हो रहा है उसका टाइम नोट करना है। अब दूसरी तरफ हमने एक पिचकारी ली है, इससे हम क्या करेंगे, एयर फ्लो करवाएंगे लाइम वाटर के अंदर। यानी यहाँ पे हमने क्या ले रहे हैं, जो हमारे एटमॉस्फेरिक एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर यहाँ पे ले रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एक्सहेल, यानी बाहर निकाली हुई एयर ले रहे हैं। तो हमें देखना है कि दोनों में से किस में जल्दी लाइम वाटर मिल्की टर्न होगा। अब जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, वो वाला वाटर जल्दी लाइम जल्दी से मिल्की कलर हो जाएगा उसका। तो वो कहाँ पे होगा, ह्यूमंस के केस में, क्योंकि जो एयर है वो तो मिक्सचर है बहुत सारी एयर का। एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रेजेंट है, इट इज वेरी लो, ठीक है, 0.003% ही सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है। बट जो एक्सेल, जो हम लोग सांस लेके बाहर एयर निकाल रहे हैं, उसमें तो प्योरली कार्बन डाइऑक्साइड है। तो द कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन द एक्सहेल एयर, इसलिए दिस वन विल टर्न मिल्की फास्टर देन द दिस वन। ओके, अच्छा, नेक्स्ट एक्टिविटी में हम देख रहे हैं कि जो यीस्ट है, यानी वो फर्मेंटेशन कर रहा है, तो वो कैसे कर रहा है। तो हमने फ्रेश जूस लिया या फिर शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो शुगर है वो फर्मेंटेशन में हेल्प करती है, उसमें हमने थोड़ा सा यीस्ट डाल दिया। अब इसको हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में रख के उसके अंदर हमने कोर्क क्या होता है, एक स्टैंड होता है जो टेस्ट ट्यूब को बंद करता है, ठीक है। उसके अंदर हमने एक ग्लास ट्यूब लगा दी, पतली सी, ठीक है। अब लाइम वाटर में हमने जब उस ग्लास, यानी कि ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब थी, ठीक है, जिसके अंदर शुगर क्या क्या है, यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन है, और यीस्ट हमने डाल दिया और इसको क्लोज किया, बट एक छोटा सा होल छोड़ दिया जहां से हमने ग्लास की पाइप निकाली है। अब इस पाइप को हम क्या करेंगे, ऐसे उल्टा करके, ये हमारे पास लाइम वाटर है, हमने इसको लाइम वाटर, इस पाइप, इस टेस्ट ट्यूब को ऐसे करके, और इस पाइप से एयर जहां से निकलेगी, लाइम वाटर में हमने जब डिप किया तो ये लाइम वाटर कैसा हो गया,
मिल्की हो गया, यानी कि जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है उससे क्या रिलीज हो रही है, CO2 रिलीज हो रही है। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये दो एक्टिविटीज थी। अब हम रीड कर लेते हैं। वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन, हमने पढ़ चुके हैं। फूड मटेरियल जो हमने टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, जो हमने फूड मटेरियल लिया उसको कौन यूज करेंगे, अब सेल यूज करेंगे एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज। कुछ जो है ऑक्सीजन का यूज करते हैं ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए, तो ऑक्सीजन का यूज करके वो किस में ब्रेक कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और कुछ और हैं जो यूज करते हैं अदर पाथवे जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो ये वाला कौन सा, किसकी बात हो रही है, डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, एनारोबिक की। तो फर्स्ट स्टेप चाहे कोई भी हो, जो फर्स्ट स्टेप होगा वो हमारा क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल है इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट। यानी फर्स्ट स्टेप तो कॉमन है सब में, ये प्रोसेस सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है। अब जो पायरुवेट है वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो सकता है, कब होगा, हम पढ़ चुके हैं, जब एनारोबिक कंडीशन होगी। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है तो इसको हम एनारोबिक बोल देते हैं। ठीक है, अगर पायरुवेट ऑक्सीजन का यूज करके माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक हो रहा है तो ये जो है क्या बना देता है, लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो काफी ज्यादा होती है एनारोबिक से कंपेयर करें तो। जब ऑक्सीजन की कमी है हमारे मसल सेल में, तब एक और पाथवे होता है पायरुवेट का, which is pyruvate is converted into lactic acid and which is also a 3 carbon molecule. ये जो बिल्डअप है लैक्टिक एसिड का, सडन एक्टिविटी कॉजेस क्रैम्प्स, इससे क्या होते हैं, क्रैम्प्स होते हैं। ओके, वी हैव अ डायग्राम वेयर इट इज शोन कि ये जो ग्लूकोज का है 6 कार्बन मोलिक्यूल साइटोप्लाज्म में किस में टूट गया है, पायरुवेट में। ठीक है, तो ये कॉमन है, ये एरोबिक में भी होगा प्लस एनारोबिक में भी होगा, ये कॉमन स्टेप है। इस स्टेप के बाद हम देखेंगे क्या होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं है यीस्ट में तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बन गई है। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारे मसल सेल में तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी बन गई है, और अगर प्रेजेंट है ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बन गई है। ठीक है, अब तक तो ये लर्न हो जाना चाहिए कि क्या हो रहा है, ग्लूकोज ने अपने आप को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक किया पायरुवेट में 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ये पायरुवेट वाला जो स्टेप है, ये वाला स्टेप 1, ये हर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, वेदर इट इज एरोबिक और एनारोबिक। नाउ नेक्स्ट स्टेप where the fate of pyruvate will be decided by the presence of or absence of oxygen. If there is absence of oxygen, then yeast जैसे organisms में क्या बनता है, ethanol and carbon dioxide. But in the human body or animal body where there are muscle cells, तो muscle cell में lack of oxygen से क्या बनता है, lactic acid and energy. But if the oxygen is present, then the pyruvate will be broken down into carbon dioxide, water, and in all the 3 steps energy will be released, but in the aerobic में ज्यादा एनर्जी रिलीज होते which is 38 molecules of ATP, but in anaerobic there are only 2 ATP molecules. Clear? Now next, the energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP. यानी जो एनर्जी रिलीज हुई उससे हमने क्या बना लिया, हमारी बॉडी ने फटाफट ATP। ये क्या करेगा, फ्यूल का काम करेगा बाकी सारी एक्टिविटीज के लिए। एटीपी को ब्रेक करके क्या बन जाता है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी बन जाती है। हु कैन ड्राइव एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, एंडोथर्मिक कौन सी होती है, रिएक्शंस जिनको इनपुट चाहिए किसका, हीट या फिर एनर्जी का, इज रिक्वायर्ड। ऐसी प्रोसेस कौन सी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसको क्या हो जा रहा है, एक एटीपी का मॉलिक्यूल बन जा रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी क्या है, एनर्जी की करेंसी है। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल। किस किस से, एडीपी से और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। दिस इज द रिएक्शन, एडीपी प्लस फॉस्फेट एनर्जी कंबाइन करके क्या बना दे रहे हैं, एटीपी। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस जो है वो इस एटीपी को यूज करके रिएक्शन करते हैं व्हेन टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन एटीपी इज ब्रोकन यूजिंग वाटर, द एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू इतना। यानी कि जब एटीपी के जो एटीपी है उसको जब ब्रेक किया जाता है, हमने क्या किया, उसको ब्रेक किया यूजिंग वाटर, तो क्या बनता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और एनर्जी कितनी रिलीज होती है, 30.5 किलो जूल पर
मोल। ठीक है, जैसे एक बैटरी है वो कितना, जैसे हम उस बैटरी को किसी भी चीज में चलाएंगे लगाएंगे, एसी का रिमोट हो, टीवी का रिमोट हो, घड़ी, वॉच हो, किसी में भी तो वो काम करेगी। तो ऐसे ही जो हमारे पास एटीपी बन गई है वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए यूज हो सकती है हमारी बॉडी में, जैसे मसल की कॉन्ट्रैक्शन में, प्रोटीन बनने में, है ना, नर्व इम्पल्स कंडक्ट करने में और बाकी और भी एक्टिविटीज में। ठीक है, सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ डू प्लांट एक्सचेंज गैसेस, कि प्लांट में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज तो इंपॉर्टेंट है ना, प्लांट्स में भी क्या होता है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ये जो एक्सचेंज है वो होता है कैसे, स्टोमेटा के थ्रू, ये हम पढ़ चुके हैं ना। और प्लांट के अंदर बड़े बड़े क्या होते हैं, बहुत सारे स्पेस, इंटरसेलुलर यानी कि सेल्स के बीच का स्पेस, सेल्स के बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। उनके अंदर जो है वो गैस फिल हो जाती है, तो सारे सेल्स जो है वो कांटेक्ट में है एयर के। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या होगा, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो डिफ्यूजन से एक्सचेंज हो जाएगी गैसेस। ठीक है, नाइट में जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो CO2 बाहर निकलती है प्लांट से, क्योंकि नाइट में तो सनलाइट नहीं है ना, तो इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग द डे टाइम CO2 जो है वो एनिमल्स ने जो CO2 जनरेट की वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो रही है, तो ऑक्सीजन क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल वर्सेस एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल कौन से होते हैं, लैंड पर जो रहते हैं, और एक्वेटिक जो वाटर में रहते हैं। ठीक है, सी, लेक्स वगैरह में। सिंपल जो यूनिसेलुलर यानी वन सेल, यूनिसेलुलर यानी कि जो वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, इसमें रेस्पिरेशन सिंपल डिफ्यूजन, यानी कि ये मान लो हमारे पास अमीबा है, ये अमीबा की सरफेस है, इस सरफेस से ही जो है वो गैसेस बाहर और अंदर, यानी बाहर CO2 और अंदर O2 जो हो रही है वो सिंपल डिफ्यूजन से हो रही है। अब डिफ्यूजन के लिए हमें क्या चाहिए होती है, अ वेरी थिन मेम्ब्रेन। वेरी थिन का मतलब क्या है, बहुत पतली, क्योंकि भाई हमें उसके एक मेम्ब्रेन है, हमें उसके इधर उधर एक सामान भेजना है, तो दिस मेम्ब्रेन शुड बी वेरी थिन टू एक्सचेंज द गैसेस। और जितना बड़ा एरिया होगा, अब एक बात बताओ, एक मैंने बोला इतना सा बस, यहाँ से बस गैसेस एक्सचेंज हो रही है, और एक मैंने ऐसे ऐसे ये कर दिया, तो अब देखो इसका जो एरिया है वो ज्यादा है ना, तो गैसियस एक्सचेंज यहाँ ज्यादा होगा और यहाँ गैसियस एक्सचेंज कम होगा। तो डिफ्यूजन के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस है जो हम आगे पढ़ेंगे। वैसे तो मैंने बता दिया, एक तो मेम्ब्रेन वेरी थिन होनी चाहिए और सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए ताकि गैसियस एक्सचेंज भी ज्यादा हो। अर्थवॉर्म्स में क्या होता है, जो कि सॉइल में रहते हैं, वो अपनी स्किन का यूज करते हैं ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने के लिए। एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, जैसे फिश हो गया, प्रॉन हो गया, उनके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। क्या होते हैं, गिल्स। ये उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जो कि डिजोल्व वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं गिल्स, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। जैसे जब वाटर जो है वो गिल्स पे से पास करेगा तो गिल्स क्या करेंगे, डिजोल्व ऑक्सीजन को वहां से ले लेंगे वाटर से, और वो जो ऑक्सीजन ली है वो फिर ब्लड के थ्रू सारे पार्ट्स में फिश के पहुंच जाएगी। अब इंसेक्ट ऐसी ग्रास ऊपर कॉकरोच और मस्कीटोज, इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स। ठीक है, कॉल्ड स्पाइरेकल्स ऑन देयर बॉडी एंड द एयर ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिया, यानी एयर की ट्यूब होती है ट्रैकिया, जिसके थ्रू जो स्पाइरेकल से अंदर जाएगी गैस और ट्रैकिया के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाएगी। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कोई पूछेगा कि इनमें क्या होता है, ग्रास ऊपर कॉकरोच मस्कीटो इंसेक्ट्स में, तो बोलेंगे हम स्पाइरेकल्स एंड ट्रैकिया का नेटवर्क। अब लैंड एनिमल जैसे ह्यूमंस, बर्ड्स, इनके पास क्या होते हैं, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होते हैं। तो जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वाटर में वो तो काफी कम होगी ना, वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन इज वेरी लो, और जो एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है एयर में वो हाई है। इसलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको क्या करना पड़ता है, फास्ट फास्ट ब्रीथ करना पड़ता है ताकि वो अपने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सके, टू कंप्लीट O2 रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल के पास क्या एडवांटेज होता है कि एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्वेटिक लाइफ। नाउ फीचर्स कॉमन टू ऑल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, तो सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं उनका लार्ज सरफेस एरिया होता है, क्योंकि एंड में जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है वो तो डिफ्यूजन के थ्रू ही हो रही है, तो लार्ज सरफेस एरिया तो सबके पास होना चाहिए ताकि एनफ ऑक्सीजन मिले। जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उनकी कैसी होती है, थिन वॉल होती है, अगेन द कंडीशन फॉर डिफ्यूजन, थिन वॉल होनी चाहिए ताकि इजी डिफ्यूजन और एक्सचेंज हो जाए गैसेस का। जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, स्किन, गिल्स, लंग्स, उसमें रिच ब्लड सप्लाई होनी चाहिए ताकि जो रेस्पिरेटरी गैसेस उसको ट्रांसपोर्ट
किया जा सके। यानी जहां पे डिफ्यूजन हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वहां पे क्या होना चाहिए, ब्लड सप्लाई ज्यादा होनी चाहिए, ताकि क्योंकि जो ब्लड है वही गैसेस को कैरी करता है इन द होल बॉडी। ठीक है। सिंस जो एरोबिक रेस्पिरेशन का पाथवे है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑक्सीजन पे। तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म को इंश्योर करना है कि उनके पास सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो कम ना पड़ जाए। तो हमने देखा प्लांट तो कैसे करते हैं, स्टोमेटा से। और जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है वो डिफ्यूजन से ही एक्सचेंज हो रहा है। दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर। डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है, एनवायरमेंटल कंडीशन पे एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। रात में जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो CO2 क्या हो जाता है, बाहर एलिमिनेट होता है। और दिन में जब CO2 होती है तो उस टाइम पे प्लांट क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। एनिमल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है ऑक्सीजन लेने के लिए। जैसे कि टेरेस्ट्रियल एनिमल जो ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन वो एटमॉस्फेयर से करते हैं, लेकिन जो वाटर में रहते हैं उनको जो है, जो ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व है वो यूज करनी पड़ती है। तो डिजोल्व ऑक्सीजन तो कम है पानी में, बट एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन ज्यादा है। तो इसीलिए जो रेट, यानी कि जल्दी जल्दी किनको सांस लेना पड़ता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को। फिश जो है वो अपने माउथ से पानी को अंदर लेती है और उसको कहाँ पे भेज देती है, गिल्स के पास, जहाँ पे जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म क्या यूज करते हैं ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए। ये ऑक्सीजन जो एब्जॉर्ब की है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स ने, डिफरेंट एनिमल्स में। तो सब ऑर्गन का स्ट्रक्चर क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम बस रीड कर रहे हैं, ये मैं सब जा चुकी हूँ सब कुछ। तो सरफेस एरिया इंक्रीज रहता है जब ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आए, तो वो ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर ले सके। तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सरफेस के थ्रू होना है। तो ये सरफेस कैसी होती है, वेरी फाइन, यानी वेरी थिन, बहुत पतली होती है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो सरफेस है ये ज्यादातर बॉडी के अंदर पाई जाती है, जैसे कि हमारे लंग्स है ना, बॉडी के अंदर है ना, ताकि उसको प्रोटेक्शन मिलती रहे, क्योंकि वो तो वेरी थिन है। अगर हल्का सा भी स्क्रैच लग गया हो तो फट जाएगी। दैट इज वाई उसको प्रोटेक्शन के लिए वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और एक मैकेनिज्म होता है फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट, तो हम ये किसमें पढ़ेंगे, ब्रीदिंग मैकेनिज्म में। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में रेस्पिरेशन, तो डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट है ना भाई। ह्यूमन बॉडी कितनी बड़ी है, तुम सोचो। प्लांट्स का तो पूरा सरफेस एरिया हम देखते हैं, प्लांट के जो लीव्स हैं, स्टेम है, रूट्स हैं, सब कांटेक्ट में है एयर के, तो वो तो इजीली एक्सचेंज कर लेंगे। बट जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं अंदर, वो तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है एयर के। तो क्या होगा, अगर हम सिर्फ हमारा लंग्स जो है वो काम करेंगे, डिफ्यूजन कर करके अगर गैस को एक्सचेंज करेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि हमारी बॉडी तो बहुत बड़ी है। बिकॉज वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन बॉडी सो बिग कि ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज नहीं कर सकती ना पूरे बॉडी में क्विकली, क्योंकि ऑक्सीजन विल हैव टू ट्रेवल लार्ज डिस्टेंस इनटू द ह्यूमन बॉडी टू रीच ईच एंड एवरी सेल, क्योंकि ऑक्सीजन तो एवरी सेल को चाहिए। नो सेल कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। डिफ्यूजन बीइंग वेरी स्लो प्रोसेस, डिफ्यूजन कैसा होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक ऑक्सीजन अवेलेबल टू ऑल बॉडी पार्ट्स। ये हमने एस्टिमेट, ये साइंटिस्ट ने मतलब एस्टिमेट किया है कि डिफ्यूजन जो है वो ऑक्सीजन बॉडी को अगर देगी, पूरी बॉडी को, तो 3 साल लगेंगे लंग से हमारे टो तक पहुंचने में ऑक्सीजन को। ठीक है, हमारे टो तक पहुंचने में 3 years लगेंगे, जबकि हमारी बॉडी तो 1 सेकंड भी बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर सकती। ऑन द अदर हैंड जो ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम है ह्यूमंस में, वो ऑक्सीजन को क्या करता है, बहुत जल्दी ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को फटाफट हटा देता है। ह्यूमन ब्लड के अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्या होता है, आयरन का एक पिगमेंट होता है जिसमें आयरन होता है, और ये क्या करता है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर लेता है, यानी हाई एफिनिटी होती है, एफिनिटी फॉर O2। तो जो ब्लड है, जब ब्लड के अंदर डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन जाएगा, अभी हम देखेंगे, तो वो किससे कंबाइन कर लेगा, हीमोग्लोबिन से। ये कैसे कलर का होता है, रेड कलर का। तो हमारा ब्लड है वो रेड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन विच कैरीज द ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेरी एफिशिएंटली। ठीक है, नाउ वी हैव मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग क्या होता है, पहले तो ये देखते हैं। ब्रीथ का मतलब क्या है, इनहेलेशन यानी सांस को अंदर लेना, प्लस एक्सहेलेशन और सांस को बाहर निकालना। हमने एक बार सांस को अंदर लिया और निकाल दिया, ये क्या है, हमारे पास एक ब्रेथ हो गई। अब हम इसकी मैकेनिज्म समझेंगे कि आखिर हम एयर को इनहेल और एक्सहेल कैसे कर रहे हैं। तो
तो ये कहाँ पे होता है? हमारे लंग्स में। लंग्स जो है वो किससे कनेक्टेड है? हमारे नोस्ट्रल्स, ठीक है, जो हमारे नाक के बाहर 2 होल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नोस्ट्रल्स। थ्रू अ पैसेज, ठीक है, मस्कुलर पैसेज है, और फिर उसके बाद है विंड पाइप। जब हम एयर को अंदर लेते हैं तो हमारे नोस्ट्रल्स के थ्रू जो पैसेज है वहां से होता है वो विंड पाइप पे जाता है, और वहां से कहाँ जाता है? हमारे लंग्स के पास। तो हमारे जो 2 लंग्स हैं वो हमारे अंदर एयर टाइट एक स्पेस है, यानी एक जगह है एयर टाइट, या उसके अंदर होते हैं, उसको बोलते हैं हम चेस्ट कैविटी। कैविटी मतलब कोई भी खाली जगह, तो चेस्ट के अंदर जो कैविटी है वहां पे लंग्स प्रेजेंट है। जो रिब केज है, ठीक है, ये क्या है? बोन्स। ये बोन्स क्या करती है? हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है और अपने अंदर बंद करती है। बॉटम ऑफ द चेस्ट कैविटी में कर्व्ड शीट है मसल की। उस मसल का नाम क्या है? उस मसल को हम क्या बोलते हैं? डायफ्राम। तो डायफ्राम जो है वो फ्लोर बनाता है चेस्ट कैविटी का, यानी कि गंदा सा डायग्राम पर काम चला लेना। तो ये हमारे पास एक ह्यूमन बॉडी है, यहाँ पे यहाँ तक हमारे चेस्ट है, तो ये जो मस्कुलर ऑर्गन है ये क्या है? डायफ्राम। और यहाँ पे हमारे होते हैं लंग्स, ये हमारे क्या है? लंग्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें, ये हमारे पास नोज आ गई, ठीक है। इस नोज के थ्रू क्या होगा? इनहेलेशन, यहाँ से होते हुए विंड पाइप के थ्रू, यहाँ से विंड पाइप के थ्रू होते होते एयर जाएगी हमारे लंग्स में, ऐसे। अब ये जो विंड पाइप, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेकिया भी बोलते हैं। ये नीचे जाके देखो आप 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, ठीक है। और लंग्स के अंदर ये बहुत सारा नेटवर्क बना लेती है अलग अलग, उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स। ऐसे ये विंड पाइप पतले पतले नेटवर्क बना लेती है। लेकिन अब ये जो विंड पाइप है इसके चारों तरफ क्या लगे होते हैं? कार्टिलेज। क्या होते हैं? ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ताकि जो हमारा विंड पाइप है जब उसके अंदर एयर नहीं है उस टाइम पे वो कोलैप्स ना हो जाए, है ना, पिचक ना जाए। तो उसके पास क्या लगे होते हैं? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जो उसको कोलैप्स करने से बचाते हैं। अब हम स्टेप्स देख लेते हैं। जब हम ब्रीथ इन करते हैं, ठीक है, ब्रीथ इन करते हैं तो 2 चीजें होती हैं। क्या होती हैं? जो मसल है रिब्स की वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी जो रिब केज है वो अपवर्ड मूव होता है, ठीक है। जैसे ये जो साइड से देखें तो ये हमारा रिब केज यहाँ पे अगर है, रिब केज क्या होती है? हड्डियां होती है। ये जो है ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाता है, ठीक है, और बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ। और डायफ्राम जो होता है वो नीचे। ये जो डायफ्राम है ये कहाँ मूव होता है? नीचे। ये हमारे पास डायफ्राम है, ये हमारे पास रिब्स वाला पोर्शन है। तो रिब्स का पोर्शन ऊपर जा रहा है, ऐसे देखो, और डायफ्राम जा रहा है नीचे। इससे क्या होगा? जो ये स्पेस है ये क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा, और जैसे ही स्पेस बड़ा हो जाएगा तो अंदर की तरफ क्या आ जाएगी? एयर आ जाएगी। अब हम बाहर निकाले, अगर हम एयर को बाहर निकालना चाहे तो क्या करेंगे? एयर को अंदर लेना था तो हमने अपने चेस्ट साइज को इंक्रीज कर दिया। अब एयर को हमें रिलीज करना है तो हम क्या करेंगे? साइज को डिक्रीज करेंगे। उसके लिए जो मसल्स है रिब्स की वो रिब केज को डाउनवर्ड मूव करेंगी और अंदर की तरफ, और डायफ्राम रिलैक्स होके ऊपर की तरफ आ जाएगा। ब्रीद आउट करते टाइम हमें जो है रिब केज हमारा डाउनवर्ड मूव होगा, यानी ये जो रिब केज ऊपर गया था ये हमारा अब डाउनवर्ड की तरफ, नीचे की तरफ मूव होगा, और जो डायफ्राम है वो कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ। इससे ये जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज, और एयर कहाँ आ जाएगी? बाहर। ये देखो जैसे यहाँ पे हो रहा है ना, इंस्पिरेशन की, इंस्पायर जब कर रहे हैं तो एयर अंदर आ रही है यहाँ से। डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ जाके कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और रिब्स और स्टर्नम जो है वो मिडल में एक बोन होती है रिब्स के, ये दोनों क्या हो रही है? ऊपर की तरफ एक्सटेंड हो रही है, तो स्पेस बढ़ जाता है। और ऐसे ही हम देखें एक्सेलेशन के टाइम पे, तो एयर को बाहर जाने के लिए ये स्पेस कम हो रहा है, रिब्स हमारी नीचे की तरफ आ रही है और डायफ्राम हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मेन ऑर्गन क्या क्या है? नोज, हमारी नोज, नसल पैसेज वो रास्ता जिससे होके जाता है जिसको हम नसल कैविटी भी कहते हैं, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स और डायफ्राम। हमारे नोज में 2 होल्स है जिसको हम बोलते हैं नोस्ट्रिल्स, और एक रास्ता है उसके पीछे, उसको हम बोलते हैं पैसेज। ये जो पैसेज है इसमें फाइन हेयर्स हमारे नोज के अंदर है ना, स्मॉल स्मॉल हेयर्स और म्यूकस होता है जो क्या करता है? ट्रैप कर लेता है
भाई बाहर से तो एयर में तो डस्ट भी है, पैथोजेंस भी है, यानी कीटाणु भी है, उनको ट्रैप कर लेता है ताकि अंदर सिर्फ कैसी एयर जा सके, क्लीन एयर जा सके। इम्प्योरिटीज को ट्रैप कर लिया। यहाँ से जो एयर है वो कहाँ पे पास होती है, हमारे गले से होते हुए, थ्रोट से होते हुए लंग्स में जाती है। ट्रैकिया एक ट्यूब है जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं, तो विंड पाइप का दूसरा नाम है ट्रैकिया। इसके बाहर क्या लगी होती है, रिंग्स लगी होती है सॉफ्ट बोन्स की, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज, ताकि ट्रैकिया जो है वो कोलैप्स ना हो जब उसमें एयर नहीं है। ट्रैकिया फिर दो स्मॉल ट्यूब्स में बढ़ जाता है, ये हमारे पास ट्रैकिया है, ये दो स्मॉलर ट्यूब्स में जो है डिवाइड हो गया। ये हमारे लंग्स हैं, ये ट्रैकिया के बाहर रिंग्स लगी हुई हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इसको हम ब्रोंकाई बोल देते हैं। टू ब्रोंकाई आर कनेक्टेड टू टू लंग्स। लंग्स के अंदर क्या है, ये और छोटे छोटे, ये देखो ऐसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गए, और लास्ट में एक बलून लाइक सैक होता है। ये देखो, ये मैंने क्या बना दिया, बलून लाइक सैक बना दिया दोनों लंग्स के अंदर। इसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो एल्वियोलाई होता है यही क्या है, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी ह्यूमंस में जो गैस एक्सचेंज होती है वो एल्वियोलाई के थ्रू होती है। तो इसकी वॉल कैसी होंगी, वेरी थिन होगी, क्योंकि डिफ्यूजन होना है। और इसके पास बहुत थिन ब्लड कैपिलरीज है ना, ब्लड का नेटवर्क है, तभी तो एक्सचेंज होगी गैसेस। Gaseous exchange take place in the alveoli. They provide large surface area. कैसा surface area है, large surface area है। हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये इजी स्ट्रक्चर पहले हम देखेंगे, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से आ रही है, लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी हमारे पास लंग्स में आ रही है, कहाँ से, हार्ट से। ये क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इनके पास डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि इनके पास, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, ये आई, ये ब्लड आया और इसने क्या किया, अपनी CO2 तो यहाँ दे दी एल्वियोली को बाहर निकालने के लिए, और इससे ऑक्सीजन ले ली। अब जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो कहाँ जाता है, पल्मोनरी वेन से होते हुए हार्ट के पास, जो कि इसको पंप कर देता है, ठीक है, इजी। ये हमारे पास ब्लड की वीन कैपिलरी है, कैपिलरी, और ये हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन रेड सेल क्या है, हीमोग्लोबिन, जो कि क्या करेगा, ऑक्सीजन को कैरी करेगा, ठीक है। तो अब ये इतना कॉम्प्लेक्स हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस हमें क्या याद रखना है कि मूवमेंट ऑफ एयर इन और आउट हो रही है बाय डिफ्यूजन। और ये डिफ्यूजन किस किस के बीच में हो रहा है, एल्वियोलाई की सरफेस एंड कैपिलरी की सरफेस के बीच, ठीक है। कैपिलरी में क्या प्रेजेंट है हमारे पास, हीमोग्लोबिन, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन, ये ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, बस हमें इतना ही लर्न करना है, ओके। नेक्स्ट वी हैव व्हेन वी ब्रीथ इन, जो हमारा, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो जो एल्वियोलाई है उसके अंदर एयर फिल हो जाती है, ऑक्सीजन कंटेन, जिसके अंदर ऑक्सीजन है। अब ये जो ऑक्सीजन है ये बाहर जाएगी, डिफ्यूज करेगी ब्लड में, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज की वॉल्स में डिफ्यूज कर जाएगी। ऑक्सीजन को कैरी करेगा ब्लड ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में, ठीक है। ये ऑक्सीजन कौन कैरी करता है, हीमोग्लोबिन, जो कि ब्लड में प्रेजेंट है। ये ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन करेगी, डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, यानी ग्लूकोज के साथ एनर्जी रिलीज करने के लिए। तो CO2 जो प्रोड्यूस हुई है वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, दिस कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड कैपिलरी। ये जो है एल्वियोली के जो अंदर ब्लड कैपिलरी से हमारे एल्वियोली के पास जाएगी, जहां पे ये एल्वियोली के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी, और ये एल्वियोली उसको क्या कर देगी, चेस्ट, उसको एयर को बाहर पुश करेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या चलेगी हमारी बॉडी से बाहर चली गई। तो ये था हमारा पूरा मैकेनिज्म। एक बार समराइज कर लेते हैं, हमने क्या किया, ब्रीद इन किया अपने नोज से, नोस्ट्रिल से ब्रीद इन किया, और नसल पैसेज से होते हुए वो कहाँ चला गया, विंड हमारे ट्रैकिया से होते हुए हमारे लंग्स के पास चला गया है। और ये जो हमने एयर ब्रीद इन की है, इट इज वेरी रिच इन ऑक्सीजन। लंग्स के पास क्या है, एल्वियोलाई है, जिसके अंदर हमारे पास एक कैपिलरी का नेटवर्क है, ब्लड की जो कैपिलरीज है वो है। तो एल्वियोली क्या करेगी, ऑक्सीजन को ब्लड कैपिलरी में डिफ्यूज कर देगी, डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है जो कि उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के पास लेके जाएगा। अब बॉडी के पास जाने के बाद क्या होगा, हमारे बॉडी सेल्स उस ऑक्सीजन को यूज करके ग्लूकोज को ब्रेक कर देंगे और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अब हमारे पास वेस्ट बचा, दैट वेस्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन हमारे बॉडी सेल से वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके अंदर डिफ्यूज हो जाएगी, इनटू द ब्लड कैपिलरीज, और वो ब्लड कैपिलरीज उस वापस आके कहाँ पे देंगी कार्बन डाइऑक्साइड को, एल्वियोली में। अब वो एल्वियोली के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होके एयर बाहर निकल जाएगी। तो ये था हमारा पूरा मैकेनिज्म, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भाई हमने सांस बाहर निकाल दी तो फिर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। हमारी बॉडी में कुछ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन या एयर जो है वो बचता है, क्योंकि अगर
एल्वियोली के पास एयर नहीं होगा तो एल्वियोली तो कोलैप्स हो जाएंगी ना, उसके अंदर एयर नहीं है तो। लेकिन उसके पास जो एयर है उसको हम क्या बोलते हैं, बची हुई वॉल्यूम यानी रेजिडुअल वॉल्यूम। कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर में मोर सोल्यूबल है। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन जो है उसको कौन लेके जाता है, हीमोग्लोबिन, जिसको शॉर्ट में एचपी लिखते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी में घुल जाती है, यानी कि वाटर जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। ह्यूमंस में एयर जो है बॉडी में जाती है थ्रू नोस्ट्रिल्स। तो एयर जो पास हो रही है उसको फिल्टर कौन करते हैं, हमारे नोज के हेयर। और पैसेज जो है वो लाइन होता है किससे, म्यूकस से, जो कि इस प्रोसेस में हेल्प करेगा किसमें, ट्रैप करने में। एयर जो है वो कहाँ जाएगी, थ्रोट में, फिर लंग्स में। और रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो है वो थ्रोट में प्रेजेंट होते हैं ताकि जो एयर पैसेज है वो कोलैप्स यानी पिचक ना जाए एक तरीके से। जैसे स्ट्रॉ में हम जब बाहर की तरफ एयर करते हैं तो स्ट्रॉ पिचक जाती है ना, वैसे ही हमारा जो थ्रोट में पैसेज है वो पिचके ना, इसलिए क्या होती है वहां पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है। अब लंग्स के अंदर क्या है, स्मॉलर और स्मॉलर ट्यूब्स बनती जाती है जो फाइनली किसमें टर्मिनेट हो जाती है, एल्वियोली में, जिसका सिंगुलर क्या है, एल्वियोलस। जो एल्वियोली है वो सरफेस देती है किसके लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। एल्वियोली की वॉल्स कैसी होंगी, जिनमें बहुत सारे क्या होंगे, ब्लड वेसल्स होंगे। ठीक है। अब हम देख चुके हैं कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ उठती हैं और डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ जाके फ्लैट हो जाता है, जिससे चेस्ट कैविटी क्या हो गई है, लार्जर हो गई है। और इससे जो एयर है वो अंदर आ जाती है। अब जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया है पूरी बॉडी से, जो कि हमारा वेस्ट है बॉडी का। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है रेस्ट ऑफ द बॉडी वो कहाँ चली गई, एल्वियोली के पास। और जो ऑक्सीजन है एल्वियोल एयर में उसको किसने ले लिया, ब्लड ने ले लिया। ब्रीदिंग साइकिल के दौरान जब एयर को अंदर लिया जाता है और बाहर निकाला जाता है, लंग्स के पास एक बची हुई वॉल्यूम ऑफ एयर रहती है। तो जब बॉडी साइज बड़ा है एनिमल का तो डिफ्यूजन प्रेशर तो ऑक्सीजन नहीं लेके जा सकता। इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो कि क्या है हमारे पास, हीमोग्लोबिन है, वो जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है टू द होल बॉडी पार्ट। ह्यूमन में क्या है, हीमोग्लोबिन, जिसकी हाई एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए। ये पिगमेंट रेड ब्लड में सेल में प्रेजेंट होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है पानी में ज्यादा सोल्यूबल है तो वो ट्रांसपोर्ट होती है इन डिजोल्व फॉर्म इन अवर ब्लड, यानी ब्लड में घुल के। अब ये देखो, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। लंग कैंसर जो है वो बहुत कॉमन कॉज है डेथ का वर्ल्ड में। तो अपर पार्ट है ना जो रेस्पिरेटरी ट्रैक का, उसमें स्मॉल स्मॉल हेयर्स होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सीलिया। यानी ये जो ट्रैक है अपर ट्रैक, इसमें स्मॉल स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट है जिसको सीलिया बोलते हैं। ये सीलिया जो है वो जर्म्स को रिमूव करता है और हार्मफुल पार्टिकल्स को। स्मोकिंग क्या करेगा, इन हेयर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय। तो जो जर्म्स डस्ट स्मोक होता है वो सब लंग्स में चले जाता है, जिससे इन्फेक्शन, कफ और लंग कैंसर भी हो सकता है। ओके। अब हम इस एनसीईआरटी के डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा नसल पैसेज, इस रास्ते से होते हुए हमारे पास क्या हो रहा है, एयर जो है वो अंदर जा रही है, ये हमारा ट्रैकिया है और यहाँ पे ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज दी हुई हैं। उसके बाद ये 2 में डिवाइड हो गया है विच इज ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद जो स्मॉल वाले और छोटा नेटवर्क होता जाता है उसको हम क्या कह देते हैं, ब्रोंक्यूल्स। और लास्ट में हमारे पास आ गया एल्वियोलर सैक। ये हम देख सकते हैं एल्वियोलाई का डायग्राम है। ये हमारे पास रिब्स हैं जो लंग्स को प्रोटेक्ट करती है और ये मस्कुलर डायफ्राम यहाँ पे दिया हुआ है। Okay, so this is all for this video. If you have any doubts, you can comment in the comment section. Thank you.